अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 discrete probability distribution. In discrete probability distribution we discuss binomial distribution. In binomial distribution example number 1.3 3.19 and lecture number 68. Suppose that 7 coins are tossed and the number of heads head noted. This experiment is repeated 128 times. First part, fit a binomial distribution under the hypothesis that the coins are unbiased. Second is compute the theoretical frequencies, and the third is find the mean and the standard deviation. हमारे पास इस क्वेश्चन में 7 कॉइन्स को हमने क्या करना है, 7 कॉइन्स को हमने टॉस करना है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को हमने कितने टाइम रिपीट करना है, 128 टाइम। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट राइट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है n इक्वल टू 7, x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? And the coin is two possible outcome, head and tail. So 1/2 is the probability of success and 1/2 is the probability of failure. Clear? And the experiment is repeat how many times? The experiment repeat 128 times. So the capital N is equal to 128. Clear? So the experiment is repeat 128 times. First part is fit a binomial distribution. You know that the binomial distribution, the function is ncx p power x q power n minus x, and the x is lies between 0, 1, 2 up to last value is this is the general form of the binomial distribution. The binomial distribution, according to this information, the n is 7, x is x, p, what is p, 1/2 power x, what is q, q power 1/2 power 7 minus x, and the range of x equal to 0, 1, 2 up to 7. Clear? Means the range of x is 0 to 7. This is the probability of x. Next is find the probability distribution. हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट करनी है। सो हाउ टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। हमने थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करनी है। हमने यहाँ पर एक्स, आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एक्स। क्लियर? सो द एक्स इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the second part of this question, and this was the first part of this question. The second part is x, p of x, and n multiplied by p of x. This is the expected frequencies. Clear? This is the expected frequencies. So the expected frequency is this. First construct the columns. हमने क्या करना है इस फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर? द x की वैल्यूज हमने इस फंक्शन में पुट करनी है। x की वैल्यू अब 0, 1, 2 सारी वैल्यू हमने पुट करनी है। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है। अब हमने किस तरह करना है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज 7 शिफ्ट एंड CR 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 पावर 0 and multiply by 1 divided by 2 power head 7 minus 0. 7 minus 0 equal to 7. So the answer is 0.0078125. Clear? 0.0078125. So next is put the value of x equal to 1. अब हमने जहाँ पर 0 पुट किया है वहाँ पर अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने वहाँ पर 1 पुट कर लिया है x की जगह, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब हमने उसी डेंसिटी फंक्शन में यहाँ पर अब 1 और 7 - 1 क्या होता है वहाँ पर फंक्शन में, 7 - 1 हमारे पास फंक्शन में
7 minus I have write it again, bracket 1 divided by 2, bracket close, power 7 minus 1 is 6. Clear? So the answer is 0.054687 So the next is, अब यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट किया था, अब यहाँ पर पुट करेंगे फंक्शन में 2. अब यहाँ पर देखें इस फंक्शन में 2 और यहाँ पर 7 minus 2 तो 6 आएगा, 7 minus 2 तो 5 आएगा. तब यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर वही दोबारा हमने लिख लिया, हमसे गलत हो गया है, 7 minus से 5. ठीक है, 0.1640 0.1640625. हमने थर्ड क्या पुट करना है, 3. हमने थर्ड पुट करना है 3. यहाँ पर 2 की जगह हमने 3 पुट करेंगे, 3. और यहाँ पर 7 minus 3 क्या आएगा, 7 minus 3 हमारे पास आएगा 4. 0.2734375 0.2734375. अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन में 3 की जगह क्या पुट करेंगे, 4. अब यहाँ पर पुट करेंगे 3 की जगह 4. 7 minus 4 तो क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पर. तो आंसर इज 0.273 4375. अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे 5. अब हम यहाँ पुट करेंगे 5. सो द नेक्स्ट यहाँ पे पुट करेंगे 5 और यहाँ पर 7 minus 5 तो क्या आएगा, 7 minus 5 आंसर आएगा 2. यहाँ पर 0.1640625. लास्ट में हमारे पास क्या है, अब हम पुट करेंगे 6, फिर 7 पुट करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 6, फिर यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर 7 minus 6. 7 minus 6 is 1. Clear? 0.0546873. अब हम पुट करेंगे लास्ट में 7. ठीक है, 7 एंड द लास्ट में 7 minus 7 तो यहाँ पर 0. आंसर इज 0.0078125. क्लियर? तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज आ गई. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करने कैपिटल एन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन? कैपिटल एन इज इक्वल टू 128. क्लियर? तो कैपिटल एन हमारे पास क्या है, 128. अब 100,78125 मल्टीप्लाई 128. द आंसर इज 1. यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया है, 1. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास 0.0546546875 multiply by 128. The answer is 7. क्लियर? अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे 0.16400625 multiply by 128. Answer is 21. So 128 multiply by 0.27
34375, आंसर इज 35। और अगर आप देखें तो ये आंसर सेम है हमारे पास, ये वाला आंसर सेम है, ये प्रोबेबिलिटी सेम है और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इट्स मीन अगर मैं इसको 128 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। यहाँ से भी 35 आएगा, इसको भी 128 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 121 आएगा। इस वैल्यू को 128 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 7 आया तो इधर भी 7 आए। इस वैल्यू को 128 से मल्टीप्लाई तो 1 आया है, तो इस वैल्यू को 128 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास होगा। अब मैंने इसको सम करना है कि इसका सम वाकई में 128 आता है कि नहीं। 1 + 7 + 21 + 35 + 35 + 21 + 7 + 1, सो द आंसर इज 128। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 128। ये सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है, इसके लिए हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीन। व्हाट इज द मीन? द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NP। क्लियर? So the mean of the binomial distribution is NP. What is N? N is 7. What is multiplied by P? P is 1/2. So 7 divided by 2, the answer is 3.5. The mean of the binomial distribution is 3.5 and variance of the binomial distribution is N, P and Q. So 7 multiply 1/2 multiply by 1/2. So 7 multiplied by 2 2s are 4. So 7 divided by 4, the answer is 1.75. 1.75. Standard deviation is equal to under root NP and Q. Under root NP and Q. So what is the standard deviation of the binomial distribution? Just take the positive square root of the variance. So under root of 175 is equal to, under root मैंने ले लिया, under root of answer is equal to 1.322. 1.322. So the standard deviation is the 1.322. सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखना था, हमारे पास वो लिख लिया जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास इसको हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट करनी थी, तो हमने उसी फंक्शन में आपको एक्स की वैल्यूज हमने ये सारे पुट किए तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसी प्रोबेबिलिटीज के साथ मैंने कैपिटल N को 128 को मल्टीप्लाई किया, तो 128 को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मीन फाइंड किया और इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं जो कि मैं इस क्वेश्चन में आपको लिए सॉल्व कर चुकी हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।